Assalamu alaikum students. Today we are going to learn may, about the use of may, might, have to and should. Okay, let's start the reading. Okay, you are looking for Ben. Nobody is sure where he is, but you get some suggestions. For example, where Ben? He may be in his office, he might be having lunch, or perhaps he is in the office, perhaps he is having lunch, or ask and she might know. Perhaps she might know, perhaps she know. Okay. When we use may or might to say that something is possible, we use may or might to say that something is possible. Usually you can use may or might, so you can say it may be true or it might be true, perhaps it's true, where you use perhaps, or might, may. You can say that it is used for a possible condition or possible situation. For example, you can say that maybe it will be happen, or etc. She might know, she may know. The negative form are may not or might not is or might not, may not. It may not be true, perhaps it's not true, it is not true. She might not work here anymore, perhaps she doesn't work here. Or for example, there are some examples. For the past we use may have or might have. I wonder why Kate didn't answer her phone. She may have been asleep. Perhaps she was asleep. I can't find any phone anywhere. My phone anywhere. You might have left it at work. Perhaps you left it at work. This is the use of may and might. Okay, there are some could is similar to may and might. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, could is similar to may and might because may and might having a same meaning. So it's a strange story, but it could be true. It is possible that it is true. You could have left your phone at work. It is possible that you left it there. But couldn't negative, this is a negative form, no? Couldn't is different from may not and might not comparison. क्योंकि बेटा couldn't जो है आप both conditions में use करते हो, लेकिन may not और might not आप both conditions में use नहीं करते हो. For example, in future and present and other conditions na. Sarah couldn't have got my message, otherwise she would have replied. It is not possible that she got my message. I wonder why Sarah has not replied to my message. I suppose she might not have got it. It is possible that she didn't get it. So perhaps she didn't. So perhaps she did. Perhaps she didn't. These are the use of may and might. Next one is also may and might. We use may and might to talk about possible action or happening in the future. Possible action and happening in the future. For example, I have not decided yet where to go on holiday. I may go to Ireland. Perhaps I will go. जब आप perhaps का यूज़ कर रहे हो, इट्स मीन आप फ्यूचर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हो पहले से ही. उन्होंने जैसे कि ऊपर डिस्क्रिप्शन में कहा है, वी यूज़ मे एंड माइट टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शन हैपनिंग इन द फ्यूचर. वन थिंग इज़ पॉसिबल एक्शन एंड सेकेंड वन इज़ हैपनिंग विच इज़ हैपनिंग इन द फ्यूचर. टेक एन अम्ब्रेला with you. It might rain later. Perhaps it will rain.
The bus is not always on time. We might have to wait for a few minutes. Perhaps he will have to wait. The negative form are may not and might not is Amy may not go out tonight. She is not feeling well. Perhaps she will not go out. There may not be enough time to discuss everything at the meeting. Perhaps there will not be enough time. जैसे कि उन्होंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि हम ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में होने जा रही हो वहाँ पे हम मे और माइट का यूज़ करते हैं। फ्यूचर में होने वाले इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, हम मे और माइट का हम यूज़ कर रहे होते हैं। कंपैरिजन विल और मे एंड माइट। आई विल बी लेट दिस इवनिंग, आई माइट बी लेट इन दिस इवनिंग, माइट और मे बी लेट इन दिस इवनिंग पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। यूजुअली यू कैन यूज़ मे और माइट, सो यू कैन से आई मे गो टू आयरलैंड और आई माइट गो टू आयरलैंड। जेन might be able to help you. Jane may be able to help you. But we use only might, not may, when the situation is not real. We use might when the situation is not real. Unrealistic way में हम क्या करेंगे, हम might का use करेंगे. For example, if they paid me better, I might work harder. Not I may work harder, I might work harder. According to the situation, the situation here is not real because they do not pay me well, so I am not going to work harder. Okay, when we see the unrealistic situation, unreal situation, we use their may, and in real situation we use may. In unreal situation we use might. We can use might. There is a continuous form may or might be ing with the use of ing. Compare this with will be or ing. Don't phone at 8:30. I will be watching a football on television. कॉन्टीन्यूस फॉर्म वो आपको इसमें बता रहे हैं कि आप कॉन्टीन्यूस फॉर्म किस तरह से यूज़ कर सकते हो माइट बी के साथ और मे बी के साथ। ओके, नेक्स्ट वन इज़ माइट एज वेल। हेलन एंड क्लेयर have just missed the bus. The bus run every hour. What shall we do? Shall we talk suggestion? है ना यहाँ पे we might as well. It's a nice day and I don't want to wait here for an hour. We might as well do something. Okay, we might as well do something. We should do it because there is no better alternative. There is no reason not to do it. Maybe well is also possible. What time you are going out? Well, I am ready, so I might as well go now. The use of as well with might and the use of ing with might. This chapter is closed. Okay, next one is have to. The use of have to. Where we can use have to. Okay, I explain. Have got or have to. Have got to and have to meaning the same. There are same meaning of have got to and have to. Have to is more informal form, na? Informal form. Have to is more informal form. For example, does he have to do exams this year? For example, this is an example. Does he have to do exam this year? Informal way है. ओके, हम बुक से रीडिंग करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं. आई हैव टू डू समथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू डू इट, आई एम obliged to do it. You can't turn right here, you have to turn left. You have to turn left here. I have to wear glasses for reading. Informal way. Robert
can't come out with us this evening. He has to work late. हम फार्म का यूज़ हैज़ और हैव का यूज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट करेंगे. लास्ट वीक टीना broke her arm and had to go to hospital. He has not had to go to the doctor for ages. We use do, does, did in question and negative sentences for the present and past simple. Yes, we can use there. What do जैसे कि मैंने पहले भी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी है. डज ही हैव टू डू एग्ज़ाम दिस ईयर. ऐसे ही वो कह रहे हैं कि हम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यहाँ डू, डज और डिड का यूज़ करेंगे. जैसे कि प्रेजेंट फॉर्म में हम डू और डज का यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंसेस में, और पास्ट सिंपल में हम डिड का यूज़ करते हैं. व्हाट डू आई हैव टू डू टू गेट अ न्यू ड्राइविंग लाइसेंस. नॉट व्हाट हैव आई टू डू. नॉट. यहाँ पे हम जो करेक्ट यूज़ है इसका हम करेंगे व्हाट डू आई हैव टू डू टू गेट अ न्यू ड्राइविंग कार. ओके, हम एक पास्ट का सेंटेंस पढ़ लेते हैं. वाई डिड यू हैव टू लीव अर्ली. वाई डिड यू हैव टू लीव अर्ली. पास्ट हम वर्ब जो है वो हम पास्ट का यूज़ करेंगे, और यूज़ हम जो हैव टू का यूज़ कर रहे हैं हम उसको किस तरह से प्रेजेंट टेंसेस में और पास्ट टेंसेस में उनका हम यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन इज़ यू कैन से आई विल हैव टू, आई एम गोइंग टू हैव टू, एंड आई माइट, आई मे हैव टू. यू कैन मैं रिपीट कर रही हूँ. यू कैन से आई विल हैव टू, और आई एम गोइंग टू हैव टू. हैव टू का यूज़ हम किस तरह से फ्यूचर में कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस में कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू हैव टू, एंड आई माइट और आई मे हैव टू. मे और माइट के साथ हैव टू का यूज़ कैसे करते हैं. दे कांट फिक्स माई कंप्यूटर सो आई विल हैव टू बाय अ न्यू वन. ओके. आई एम गोइंग टू हैव अ I am going to I am going to have to buy a new one. Tom might have to work late tomorrow, and Tom may have to work. It is a possible that he will have to. In possible condition or situation, must is similar to have to. ओके, जैसे हमने must का यूज़ पढ़ा था ना कि हम must को कैसे यूज़ करते हैं, इसी तरह might और मे के जिस तरह से मीनिंग सेम है और उनको हम डिफरेंट सिचुएशन में और कंडीशंस में यूज़ करते हैं, ऐसे ही must और have to के मीनिंग बिल्कुल सेम है. यहाँ पे वो आपको नेक्स्ट इसकी एग्जांपल्स भी दी जाएंगी. इट इज़ बेटर देन आई थॉट. आई मस्ट गो, आई हैव टू गो, और इन दोनों में से आप एक क्लॉज यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ मस्ट और हैव टू गिव योर ओन ओपिनियन. फॉर एग्जाम्पल, टू से वट यू थिंक इज़ नेसेसरी और टू रिकमेंड समवन टू डू समथिंग. आई हैव नॉट स्पोकन टू शोर फॉर एजेस. आई मस्ट फोन हर, हैव टू फोन हर. I say this is necessary. Mark is a really nice person. Okay, Mark is a really nice person. You must meet him. You have to meet him. दोनों में से एक लगा सकते हो. Recommend. I recommend this. Okay, I recommend this है, but आप यहाँ पे क्या लगाओगे? You must meet him. वैसे तो recommend कर रहे हैं ना वो, ठीक है. We use have to, not usually must, to say that someone is obliged to do. The speaker is not giving his or her own opinion. I have to work from 8:30 to 5:30 every day. A fact, not an opinion. ये fact है, ठीक है. Jane has a travel for lot. Jane has a travel a lot for her work. But must is used in written rules and instructions. Application for the job must be received by 18 May. Okay, but must is used in written rules और instructions. written rules और instructions के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम must का यूज़ करते हैं कि you must to do this. For example, okay, you cannot use must to talk about the past. past के बारे में आप बात करते हुए must का यूज़ नहीं करेंगे. We didn't have much time. We had to hurry.
नॉट वी मस्ट हरी, वी हैड टू हरी। पास्ट सेंटेंसेस में हैड पास्ट में यूज़ होता है ना। मस्ट नॉट एंड डू नॉट हैव टू आर कम्प्लीटली डिफरेंट। मस्ट जब इसकी नेगेटिव फॉर्म बनाते हैं तो दोनों टोटली डिफरेंट होते हैं। जब हम हैव नॉट टू हम नहीं कहेंगे, हम इससे पहले प्रेजेंट वर्ब का एक्सिलरी वर्ब का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल डू नॉट और डज नॉट, ठीक है। मस्ट के फ़ौरन बाद हम मस्ट नॉट का यूज़ कर लेते हैं। यू मस्ट नॉट डू समथिंग, इट इज़ नेसेसरी दैट यू डू नॉट डू इट, सो डू नॉट डू इट। ओके, एक हम हैव टू की एग्जांपल पढ़ लेते हैं। यू डू नॉट हैव टू डू समथिंग, यू डोंट नीड टू डू इट, बट you can if you want. You don't have to tell Tom what happened, I can tell him myself. ओके, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, मस्ट की क्या एग्जाम्पल दी हुई है उन्होंने। यू मस्ट कीप दिस अ सीक्रेट, यू मस्ट कीप दिस अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल एनी वन, डोंट टेल एनी वन। ओके, यहाँ पे इसका जो सेंस बन रही है, जो मीनिंग इनके बन रहे हैं। यू कैन यूज़ हैव गॉट टू इंस्टेड ऑफ हैव टू। यू कैन यूज़ हैव गॉट टू, इनके मीनिंग सेम है, जैसे कि मैंने बताया था हैव गॉट एंड हैव टू मीनिंग आर द सेम, बोथ आर हैविंग मेन सेम मीनिंग। यू कैन यूज़ हैव गॉट टू इंस्टेड ऑफ हैव टू, बट कंडीशंस डिफरेंट होती हैं जहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं। यू कैन सो यू कैन से आई हैव गॉट टू वर्क टुमारो, आई हैव टू वर्क टुमारो। Okay, next one is should, the use of should. You should do something, it is a good thing to do or the right thing to do. You can use should to give advice or give an ओपिनियन। बेटा आप शुड का कहाँ पे यूज़ करते हो, जब आपने कोई एडवाइस देनी हो और जहाँ पे आप अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल यू लुक टायर्ड, यू शुड go to the bed. Okay, the government should do more to important education, improve education, more to improve education. Should we invite स्टीफन टू द पार्टी, येस आई थिंक वी शुड। ओके, जहाँ पे आप ओपिनियन दे रहे हो, जहाँ पे आप कोई एडवाइस कर रहे हो, वहाँ पे आप शुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा अपनी अपनी बुक से, ये सेम ही है सारा। ठीक है, जो हम लास्ट पे पढ़ चुके हैं, बस इसमें मेन चीज़ एक यही थी कि आप कैसे शुड का यूज़ करते हो। और यहाँ पे शुड का यूज़ कहाँ कहाँ पे करना है ये देखिए, नेक्स्ट इन्होंने बताया हुआ, यू कैन यूज़ शुड आफ्टर इंसिस्ट, रिकमेंड, सजेशन, डिमांड, प्रपोज। ठीक है, इनके बाद आप क्या करते हो, आप शुड का यूज़ करते हैं। आई इंसिस्टेड दैट ही शुड अपोलोजाइज, डॉक्टर्स रिकमेंड दैट एवरीवन should eat plenty of food. Okay, what do you suggest we should do? Many people are demanding that something should be done, that the problem. Okay बेटा, आप इन सिचुएशन में, इन कंडीशंस में और इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए किस तरह से आप शुड का यूज़ करोगे, इसमें यही बताया हुआ। आप सजेशंस में, ठीक है, रिकमेंड में आप इंसिस्ट कर रहे हो किस चीज़ के बारे में और डिमांड कर रहे हो इन चीज़ों के बारे में, आप किस तरह से आप इसको यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रही थी, तो ये चीज़ हम पढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे है, ये है दिस फॉर्म बी डू अपोलोजाइज इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव। बेटा सब्जेक्टिव क्या होता है? ओके, मैं डिफ़ाइन कर दूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव मूड इज़ द वर्ब फ्रॉम यूज टू एक्सप्लोर अ सिचुएशन। ओके, सब्जेक्टिव मूड हम कब यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव हम तब यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव मूड इज़ द वर्ब। ठीक है, ये एक वर्ब है, फ्रॉम यूज टू एक्सप्लोर अ सिचुएशन और एक्सप्लोर अ विश और डिमांड एंड सजेशन। ठीक है, जब हम ये करते हैं तो वहाँ पे हम उसको ये कहते हैं सब्जेक्टिव हम कहते हैं। ठीक है, इट इज़ द सेम एज द इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है, ये सेम इन्फिनिटिव की तरह, जैसे हम विदाउट टू, जैसे हमने लास्ट टाइम सी का यूज़ किया था, ये वो ना। यू कैन ऑल्सो यूज़ नॉर्मल, प्रेजेंट एंड पास्ट टेंसेस। इट इज़ इसेंशियल दैट एवरी वन इज़ हियर ऑन टाइम, आई इंसिस्टेड दैट ही अपोलोजाइज्ड। ओके बेटा, ये यही फॉर्म है सब्जेक्टिव
इसको मूड कहेंगे, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप कोई सिचुएशन एक्सप्रेस कर रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो सम सिचुएशन, और आप कोई विश एक्सप्रेस कर रहे हो, अपनी कोई डिमांड कर रहे हो या कुछ सजेस्ट कर रहे हो किसी को। आई सजेस्ट दैट ही शुड बाय अ कार विद द मनी ही हैड वॉन। ओके बेटा, इस तरह से आप इसका यूज़ करोगे। ये सेम है, आप इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा। आगे इसके नेगेटिव फॉर्म है, शुड के फ़ौरन बाद आप आई शुड नॉट, ओके, आप नॉट का यूज़ कर रहे हो तो इसकी नेगेटिव फॉर्म बन जाती है। बेटा दिस वाज ओवर टुडेज़ लेक्चर। आप इसकी एक्सरसाइज को, इस लेक्चर को सुनते हुए और इसकी दोबारा से आप जब अगेन रीडिंग करोगे, रीडिंग करने के बाद आप इसकी एक्सरसाइज को फिल कर लोगे, और जहाँ से आपको समझ ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल शेयर द कीज़ विद यू। ओके स्टूडेंट्स, एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज। हमने माइट, मे और माइट का यूज़ पढ़ा, ठीक है। मे और माइट के मीनिंग सेम है, बट हम इसको क्या करते हैं, हम डिफरेंट सिचुएशंस में इसका यूज़ करते हैं। और देन हमने हैव टू का यूज़ पढ़ा, और हमने शुड का यूज़ देखा, हम शुड को कैसे यूज़ करते हैं, हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं शुड को, हैव टू को, माइट को, मे को, ठीक है। ये चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं सिंपल, और इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ी है जो आप लोगों ने एक दफ़ा आपने रीड आउट कर लेना है सारा, ठीक है। देन कोई भी कन्फ्यूजन हो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।